السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں سفر کن بائی علیزہ آیت پارٹ 5۔ سر مجھے لگتا ہے ایس پی بھی ملا ہوا ہے خاور کے ساتھ، ورنہ وہ اتنی آسانی سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ داد مقدم کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ پتہ کرواؤ ایس پی آج کل کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کی ایک ایک پل کی خبر مجھ تک پہنچاؤ۔ مقدم داد کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں بولا، جی سر، اور خاور کے کچھ آدمی بھی پکڑے گئے ہیں، مگر وہ سچ بتا نہیں رہے، وہ سب بیسمنٹ میں موجود ہے۔ داد نے اسے مزید اطلاع دی۔ سچ تو ان کا باپ بھی بولے گا؟ مقدم کھڑا ہوتا ہوا سخت لہجے میں بولا اور اپنے قدم آفس سے باہر کی جانب بڑھائے۔ مقدم بیسمنٹ میں داخل ہوا تو وہاں مکمل اندھیرا تھا، جبکہ دروازہ کھلنے کی وجہ سے بیسمنٹ میں ہلکی پھلکی روشنی داخل ہو رہی تھی، جو اس جگہ کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ ہوش میں لاؤ انہیں، مقدم سامنے بندھے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے بولا جو بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ مقدم کے ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر ان کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا، جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھے، مگر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر کانپ کر رہ گئے۔ خاور کہاں ہے؟ بیسمنٹ میں مقدم کی سخت آواز گونجی۔ ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں جانے دو، ان میں سے ایک آدمی خوف کے مارے جلدی سے بولا۔ مقدم نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ ایک ڈبہ لے کر آیا اور مقدم کے آگے پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ تمہیں پتا ہے یہ کون سا بچھو ہے؟ مقدم اس ڈبے کو کھولتا ہوا بولا، جس میں کافی تعداد میں زہریلے بچھو تھے۔ پہلے یہ تمہاری زبان پر اثر کرے گا، پھر تمہارے دماغ پر، پھر تمہارے جسم پر، اور پھر تمہاری گردن کی خون کی گردش پر، جس سے تم ایک دم نہیں مرو گے بلکہ تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ مقدم ٹیبل پر وہ بچھو چھوڑتا ہوا بولا جو اب ان آدمیوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ نہیں نہیں، خدا کا واسطہ ہے، ایسے نہ کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پیسے دیے گئے تھے خاور کو نکالنے کے لیے، اور یہ حکم ایس پی نے دیا تھا۔ خاور اب کہاں ہے ہم نہیں جانتے، پر اسے ایس پی نے چھپایا ہے کہیں۔ ان میں سے ایک آدمی روتے ہوئے بولا، جبکہ مقدم کی آنکھیں وحشت سے سرخ ہو چکی تھی۔ مقدم نے اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا اور اس نے بچھو بند کیے، اور مقدم لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سر اب کیا کرنا ہے؟ ایس پی کو اٹھا لیں، داد نے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایک چال ایس پی نے کھیلی ہے اور ایک چال اب میں کھیلوں گا، مگر اپنے طریقے سے۔ تم ایس پی کو پیغام بھیجو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مقدم سنجیدگی سے بولتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ دوسری طرف علیزہ کو مقدم کا بھیجا گیا ڈریس بہت پسند آیا تھا۔ وہ پاؤں کو چھوتی ایک ریڈ کلر کی میکسی تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ اس وقت وہ مکمل تیار بیٹھی مقدم کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ افراح اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ بھابی، کیا کمال لگ رہی ہے آپ آج تو بھائی کی خیر نہیں، افراح چہکتی ہوئی بولی، جبکہ علیزہ کو بے اختیار مقدم کی صبح والی حرکت یاد آئی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ انہیں مقدم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ علیزہ کا دل ایک دم سے 200 کی سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ لے بھابی، بھائی بھی آ گئے، میں چلتی ہوں اب، افراح بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ رک جاؤ، بعد میں چلی جانا۔ علیزہ افراح کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بھابی، مجھے بی جان کی بات سننی ہے، وہ مجھے بلا رہی تھی، شاید کوئی ضروری بات کرنی ہے انہیں، میں سن کر آتی ہوں۔ افراح علیزہ سے ہاتھ چھڑواتی کمرے سے نکل گئی۔ علیزہ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی اور مقدم کا ڈریس نکالنے کی غرض سے الماری کی طرف بڑھی۔ مقدم کمرے میں داخل ہوا تو نظر چاروں طرف گھمائی تو علیزہ الماری کے پاس کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ الماری کا دروازہ کھلنے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے پاؤں صاف نظر آ رہے تھے، جن میں ہلکی پھلکی ہیل والی گولڈن جوتی پہنی ہوئی تھی۔ دودھیا سفید پاؤں میں وہ بہت جچ رہی تھی۔ علیزہ مقدم کے کپڑے نکالتی بیڈ پر رکھتی مڑی تو مقدم اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جو اس کی پسند کی ریڈ اور گولڈن پاؤں کو چھوتی میکسی میں، ریڈ ہی ایئر رنگ پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، ریڈ لپسٹک لگائے، کمال کی حسین لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، مقدم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر علیزہ نے ہلکی سی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، مقدم اس کے پاس جاتا ہوا بولا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مقدم اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ وہ ٹائم نہیں ہے، آپ تیار ہو جائے۔ علیزہ مقدم کو صبح والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراً اس کا ڈریس اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی تو مقدم مسکرا دیا۔ اوکے، پر تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو میں بولوں گا وہ مجھے دو گی، تو بس اسے یاد رکھنا۔ مقدم اس کے کان میں سرگوشی کرتا پیچھے ہٹا اور ڈریس لیے واش روم میں گھس گیا، جبکہ مقدم کی بات پر علیزہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اب آگے۔ السلام علیکم بی جان، افراح بی جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو بیٹا ادھر، بی جان اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، اور وہ بی جان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہم تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں بی جان، افراح کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بی جان بولے، آپ بس حکم کرے، پوچھ کیوں رہی ہے؟ افراح بھی ادب سے جواب دیتی ہوئی بولی۔
हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और जुमा को निकाह रखा है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? बीजान अफराह के बालों में हाथ फेरते हुए बोली। अफराह ने झटके से सर उठाकर बीजान को देखा और बेयकीनी से उनको देखने लगी। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? बीजान उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोली। नहीं बीजान, अफराह अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए बोली। तो ठीक है, फिर जुमा को जहांजेब के साथ तुम्हारा निकाह है और रुखसती बाद में होगी। बीजान की बात पर अफराह ने फिर से झटके से सर उठाया और बीजान को देखने लगी, जबकि आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। क्या जहांजेब से? अफरा बीजान की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, जहांजेब से तुम्हारा निकाह है, तुम्हें कोई एतराज़ है तो बता दो, हम बेटियों पर ज़बरदस्ती करने के कायल नहीं हैं। बीजान अफरा से नर्म लहजे में बोली। नहीं बीजान, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो आप चाहेंगी वही होगा। अफरा सर झुकाती हुई अदब से बोली। शाबाश मेरा बच्चा, आज मेरे दोनों बच्चों ने मेरे फैसले का मान रखकर मेरा दिल जीत लिया। बीजान खुश होती हुई अफरा का माथा चूमने लगी। ठीक है बीजान, मैं अब चलती हूँ, खाने की तैयारी करवानी है मुलाजमा के साथ। अफरा बोलती हुई उठी और कमरे से निकल गई, जबकि बीजान अपने बच्चों के नसीब की दुआएं कर रही थी। मुकद्दम और अलीज़ा बीजान और रज़िया बेगम से मिलते शाहवाल रवाना हो चुके थे और उन्हें पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगने थे। वो अभी उन्हें निकले 10 मिनट ही हुए थे और अलीज़ा अब बोर होने लगी थी। उसने हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक ऑन कर दिया और गाड़ी में गाने की आवाज़ गूंजी। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है। अलीज़ा ने हड़बड़ाकर गाना चेंज किया। मरीज़े इश्क हूँ मैं, कर दे दुआ, हाथ रख दे तू दिल पे ज़रा। अलीज़ा ने फिर से गाना चेंज किया, जबकि मुकद्दम अपनी हंसी दबाए सामने देख रहा था। ज़रा ज़रा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले तो अपनी बाहों में। अलीज़ा सुर्ख पड़ती बटन दबाकर म्यूज़िक ही बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे गाने रखे हुए हैं आपने, आपको शर्म नहीं आती? आप ये सब सुनते हैं? अलीज़ा अपना रुख मुकद्दम की तरफ लिए उसे घूरते हुए बोली। पहली बात तो ये कि मुझे वाकई में शर्म नहीं आती, दूसरी बात ये कि मैं ज़्यादा गाने नहीं सुनता, और आखिरी बात ये कि ये चीप जैद की है, मेरी नहीं। वो गाड़ी में लगाकर भूल गया था। मुकद्दम अपना पूरा फोकस ड्राइविंग की तरफ करता हुआ बोला। वो अलीज़ा को देखने से गरीज कर रहा था, क्योंकि अगर वो उसे देखता तो लाजमी ड्राइविंग करना मुश्किल था। वैसे सॉन्ग तो हमारे हिसाब के ही चल रहे थे, मुकद्दम शौक लहजे में बोला। आप तो है ही बेशरम। अलीज़ा सुर्ख पड़ती अपना रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी, जबकि गाड़ी में मुकद्दम का दिलकश कहा गूंजा। अलीज़ा ने मुकद्दम की तरफ देखा। वो हंसता हुआ कितना प्यारा लगता था। उसकी मुस्कुराती आंखें उसकी वजाहत को और बढ़ाती थी। अलीज़ा ने आज उसे दूसरी बार कहा लगाते देखा था। वो आज सफ़ेद शलवार कमीज़ में कंधों पर अजरक डाले किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। अलीज़ा ने उसे देखते बेसाख्ता माशाअल्लाह बोला। मिसेस, ऐसे मत देखिए, आपका ही हूँ, और अभी ऐसे मुझे देख कर कन्फ्यूज़ ना करो, घर जाकर देख लेना, और मैं भी देख लूँगा जी भर कर। मुकद्दम अलीज़ा को छेड़ते हुए बोला तो अलीज़ा छप सी गई और फ़ौरन रुख बदल कर खिड़की से बाहर देखने लगी। हाय अल्लाह, एक तो इनकी आंखें कम और दूरबीन ज़्यादा है। अलीज़ा दिल ही दिल में बोली और बाहर का मंजर देखने में मसरूफ़ हो गई। बात सुने, अलीज़ा ज़्यादा देर चुप ना रह सकी, इसलिए मुकद्दम को मुखातिब किया। जी सुनाए, मुकद्दम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो आपकी चोट कैसी है? अब अलीज़ा ने उसके कंधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ठीक है अब, मुकद्दम ने नर्म लहजे में जवाब दिया। एक बात पूछूं आपसे? अलीज़ा फिर से मुकद्दम से मुखातिब हुई। 1000 बात पूछो मेरी जान, मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए फिर से जवाब दिया। वो सब आपसे इतना डरते क्यों है? वो जो उस दिन भाई आए थे वो भी डर रहे थे। अलीज़ा का इशारा दाद की तरफ था। बेगम, आपने अभी तक बस मेरे स्वीट साइड ही देखी है, और आपके अलावा सबने मेरी बेड साइड देखी है, तो मेरी बेड साइड से एक दुनिया डरती है। ये आप ही है जो अपने शौहर को बहुत हल्का लेती है। मुकद्दम नॉर्मल लहजे में बोला। बेड साइड को क्या आप इंसान मार कर खाते हैं? अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली, जैसे उसकी बात पर यकीन ना आया हो। इंसान तो नहीं, पर तुम्हें ज़रूर खाऊंगा, वो भी जिंदा। मुकद्दम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला। क्या मतलब, आप मुझे कैसे खा सकते हैं? अलीज़ा तो हैरत से मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। घर जाकर अमल करके बताऊंगा, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आनी। मुकद्दम का लहजा अभी भी सीरियस ही था, जबकि अलीज़ा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आप मुझे मारेंगे? अलीज़ा रूहान सी होते हुए बोली, जबकि मुकद्दम का दिल किया अपना सर पीट ले।
मैं तुम्हें क्यों मारूंगा यार, मुकद्दम अपने नरम लहजे में बोला। आपने अभी तो कहा था, अलीजा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। तो मुकद्दम ने एक झटके से गाड़ी रोकी और बगैर उसे समझने का मौका दिए अलीजा की कलाई पकड़ता अपनी जानिब खींच चुका था। 2 हफ्ते बाद हमारी शादी है और तब तक खुद को मेरे लिए मुकम्मल तैयार करो। बस अब ये ही मोहलत है तुम्हारे पास मुझे और हमारे रिश्ते को समझने के लिए। इसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मुकद्दम उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए बोला, जबकि अलीजा बस शादी के लफ्ज़ पर ही अटक गई थी। शादी? अलीजा ने बेयकीनी से मुकद्दम की तरफ देखते हुए पूछा, जबकि उसकी बाकी की बातों को सिरे से नज़रअंदाज कर गई थी। हाँ शादी, जुम्मा को इफ़राह का निकाह है जहांज़ेब के साथ, और उसके बाद उनकी रुखसती के साथ ही तुम्हारी भी रुखसती होगी और शादी के सारे फंक्शन होंगे। मुकद्दम अलीजा को नरमी से छोड़ता गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला। सच्ची? अलीजा खुश होती हुई चहक कर बोली। हाँ सच्ची, अब तुम कर लेना अपनी शादी के सारे अरमान पूरे। मुकद्दम उसे खुश होता देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, हाय कितना मज़ा आएगा, मैं सिम के साथ डांस भी करूंगी। मगर वो खुश होती ही अपनी ही रो में बोल रही थी, जबकि मुकद्दम अपनी बीवी की खुशी देखकर मुस्कुरा रहा था। मुकद्दम की गाड़ी शाहविल्ला में दाखिल हुई तो अलीजा खुशी से उछल ही पड़ी। कितनी देर बाद आई थी वो अपने घर, इस घर में जहाँ की ईंट ईंट में उसके भाइयों की यादें जुड़ी थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर वो नहीं खुला। अलीजा ने मुकद्दम की तरफ देखा। मिसेस थोड़ा सब्र कर ले, मुकद्दम बोलता हुआ गाड़ी से उतरा और दूसरी साइड से जाकर अलीजा का हाथ पकड़े बाहर निकाला और इन दोनों ने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। घर में दाखिल होकर अलीजा ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने कदम लिविंग रूम की तरफ बढ़ाए तो सामने ही आसिम अपना लैपटॉप लिए बैठा पढ़ने में मसरूफ़ था। सिम? अलीजा चहकती हुई उसकी जानिब बढ़ी, जबकि आसिम तो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से अलीजा को देख रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठा और अलीजा के गले लग गया। आपी कैसी है आप? आसिम उससे गले अलग होते हुए मुस्कुराता हुआ बोला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? अलीजा ने नज़रें घुमाते हुए पूछा। मामा किचन में है, उमर और बाबा अभी ऑफिस से नहीं आए और अली और अहमद अपने रूम में उदास बैठे हैं। आसिम ने अलीजा को सब के बारे में बताया और मुकद्दम की जानिब कदम बढ़ाए। ठीक है, फिर मैं उन्हें लेकर आती हूँ, अलीजा ने मुकद्दम की तरफ देखते हुए कहा, जो आसिम से मिल रहा था, और कदम उन दोनों की कमरे की तरफ बढ़ाए। अलीजा ने आराम से कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने अहमद और अली नीम दराज बेड पर लेटे हुए थे। वो आहिस्ता से चलती उन तक आई और गौर से उन्हें देखने लगी। जो आंखें बंद किए लेटे हुए थे, उसे शरारत सूझी। उसने पास पड़ा पानी का गिलास उठाया और उन दोनों पर फेंक दिया तो वो हड़बड़ा कर उठे। हैप्पी बर्थडे मेरे शैतानों, अलीजा खुश होती ऊंची आवाज़ में बोली, जबकि अलीजा की आवाज़ सुनकर उन दोनों की पूरी आंखें खुल गईं। आप ही अब सच में अली को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। नालायक इंसानों, तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ, पहले अपने ख्वाबों से तो बाहर निकलो, अलीजा उन दोनों को घूरते हुए बोली, जबकि अहमद छलांग लगाता अलीजा से लिपट गया। हमें पता था आप ज़रूर आएंगी, अहमद खुश होता हुआ बोला और अलग हुआ। अब अली अलीजा से मिल रहा था। भाई मेरे शैतानों की बर्थडे थी, मैं क्यों ना आती, और ये क्या हालत बनाई हुई है तुम लोगों ने अपनी। जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मीर भी नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। अलीजा उन्हें तैयार होने का बोलती कमरे से निकल गई और कदम किचन की तरफ बढ़ाया। अलीजा ने किचन में कदम रखा तो आमना बेगम खाना बनाने में मसरूफ़ थी, जबकि मुलाजमा उसकी हेल्प कर रही थी। मुलाजमा ने अलीजा को देखा तो कुछ बोलने लगी, मगर अलीजा ने हाथ से इशारे से खामोश करवा दिया। वो चलती हुई आमना बेगम के पीछे खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामा जान, अलीजा आमना बेगम के गले में बाहें डालते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जबकि आमना बेगम ने फ़ौरन से रुख अलीजा की जानिब किया और हैरानगी से अलीजा को देखने लगी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, तुम कब आई? आमना बेगम अलीजा को गले लगाते हुए बोली। मैं बस अभी आई हूँ मीर के साथ, आप ठीक है ना? अलीजा ने मुस्कुराते हुए आमना बेगम से पूछा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, तुम कैसी हो? आमना बेगम उससे अपने साथ लगाते हुए बोली। अल्हम्दुलिल्लाह मामा जान, चले आइए, सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। आमना बेगम मुलाजमा को लवाजमात लाने की हिदायत देती अलीजा ने 7 कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। अलीजा अपने घर आकर बहुत खुश थी। कुछ ही देर बाद सरदार साहब और उमर भी आ गए थे। ऑफिस सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद अली और अहमद ने केक काटा था और अलीजा ने उन दोनों को गिफ्ट दिए थे। अलीजा ने सबको अपनी शादी का भी बताया था, मगर वो सब तो पहले से ही जानते थे, इसलिए अलीजा को महसूस नहीं होने दिया कि वो पहले से जानते थे। सबके साथ वक्त गुजारते पता ही नहीं चला और रात का 1 बज गया।
सरदार साहब और आमना बेगम के बहुत इसरार के बाद ही मुकज्जिम रुकने के लिए माना था, वरना तो ना तो खुद रुक रहा था, ना ही अलीज़ा को रुकने दे रहा था। सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए थे और अलीज़ा मुकज्जिम के साथ अपने रूम में आई थी। आप बैठे, मैं चेंज करके आती हूँ। अलीज़ा मुकज्जिम से बोलती ही चेंज करने चली गई, जबकि मुकज्जिम उसके कमरे का जायज़ा लेने लगा। ये वो कमरा नहीं था जिसमें मुकज्जिम ने कैमरे लगाए थे। इससे उसे ये बात पता थी कि अलीज़ा के 2 रूम हैं, जिनमें से ज़्यादातर नीचे वाले रूम में ही रहती थी और जब पढ़ाई करनी होती थी तब ऊपर वाले रूम में रहती थी। कमरे में वाइट और पिंक कलर पेंट हुआ था। सामने बड़ा सा बेड जो वाइट कलर में था, सामने ड्रेसिंग टेबल और साइड पर बुक शेल्फ थी जिसमें बहुत सी किताबें भी थी। देखने से पता चलता था कि किताबें रखने वाले को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मुकज्जिम उठा और बुक शेल्फ में से एक किताब उठाई। वो कोई नावल था जिस पर पाकीज़ा रूह लिखा हुआ था। मुकज्जिम ने किताब वापस रखते हुए सामने दीवार पर लगी अलीज़ा की और उसकी फैमिली की तस्वीरें देखने लगा। उन तस्वीरों में अलीज़ा की एक बचपन की तस्वीर भी थी, जिसमें वो दो पोनियाँ किए खड़ी आसिम के सर पर थप्पड़ लगा रही थी। तस्वीर में वो कम से कम 5 साल की मालूम होती थी। वाइट फ्रॉक पहने, चेहरे पर बला की मासूमियत लिए वो बचपन में भी बहुत खूबसूरत थी। मुकज्जिम उसकी तस्वीर देख रहा था। अलीज़ा चेंज करके बाहर आई तो देखा मुकज्जिम दीवार की तरफ मुँह किए खड़ा है। थोड़ा आगे होकर देखा तो वो उसकी ही तस्वीरें देख रहा था। क्या देख रहे हैं आप? अलीज़ा मुकज्जिम के पास जाती ही बोली। तुम्हें? दो हुर्र जवाब दिया मगर पलटा नहीं। अच्छा, आपने सुना नहीं? टाइम बहुत हो गया है। अलीज़ा को अब नींद आ रही थी, इसलिए वो मुकज्जिम से सोने का पूछने लगी तो मुकज्जिम मुड़ा और अलीज़ा की तरफ देखने लगा। अलीज़ा उसके ऐसे देखने पर कंफ्यूज सी हुई। तो क्या देख रहे हैं? अलीज़ा कंफ्यूज सी अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। तुम्हें? फिर से वही जवाब आया और साथ ही उसकी कमर में हाथ डाले अपनी तरफ खींच लिया। मीर? अलीज़ा ने बेख्तियार उसे पुकारा। जी जाने मीर, मुकज्जिम ने उसे अपने और करीब करते हुए बोला। तुमने मुझे पागल कर दिया है, अपना असीर बना लिया है। एक पल तुम्हारे बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। मुकज्जिम उसके कान में सरगोशी करता उसके कान की लौ को चूम गया। मुझे नींद आ रही है। अलीज़ा उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। सो जाना, पहले अपना वादा तो पूरा करो, वो जो मुझसे किया था। मुकज्जिम उसका चेहरा थोड़ी सी पकड़कर ऊंचा करता हुआ बोला। क्या करूं मैं? अलीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया। कुछ ज़्यादा नहीं, बस मज़ाहमत करने की गलती मत करना, और अगर की तो उसकी बहुत बुरी सज़ा दूंगा। आप अभी? अलीज़ा कुछ बोलती इससे पहले ही वो उसके अल्फाजों का गला घोट चुका था। उसकी लम्स में शिद्दत थी जो अलीज़ा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने मुकज्जिम के कंधों से उसे थामे पीछे करने की कोशिश की, मगर वो अब उसके हाथ भी कैद कर चुका था। अलीज़ा को लग रहा था अगर अब मुकज्जिम ने उसे ना छोड़ा तो वो पक्का बेहोश हो जाएगी। जबकि मुकज्जिम दुनिया जहां भुलाए लबों का जाम पीने में मसरूफ़ था। अलीज़ा का तनफ़ुस बुरी तरह से बिगड़ चुका था। इससे पहले कि वो बेहोश होती, मुकज्जिम उसके लबों को नरमी से आज़ाद करता। उसे अपने बाजुओं में उठाया बेड पर लाया, जो उसकी ही गर्दन में मुँह छुपाए अपना तनफ़ुस दुरुस्त कर रही थी। मुकज्जिम ने उसे फूलों की तरह संभालते बेड पर लिटाया और ख़ुद भी उसे अपने हिसार में लिए लेट गया। बेगम, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं तो आपका ये हाल है। जिस दिन कुछ कहा उस दिन क्या करोगी? मुकज्जिम उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला, जबकि अलीज़ा ने बेइख्तियार अपना चेहरा मुकज्जिम के सीने में छुपा लिया था। वह बेगम साहिबा, छुपना भी मुझसे ही है और अपना भी मुझ में ही और पनाह भी मुझ में ही लेनी है। मुकज्जिम शौक लहजे में बोला। मीर प्लीज़, अलीज़ा हल्की सी आवाज़ में बोली और मज़ीद चेहरा उसके सीने में छुपाया तो मुकज्जिम के चेहरे पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट रेंग गई। उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते मुकज्जिम ने उसे ज़ोर से खुद में भीजा और उसका सर चूमते आंखें मूंद लिया। दूसरी तरफ अफरा इस वक्त अपने कमरे में बेड पर लेटी करवट पे करवट बदल रही थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या जहांज़ेब दिल से राज़ी है इस निकाह के लिए? क्या वो अफरा को अपना लेगा या बस एक तरफा मोहब्बत की सज़ा देता रहेगा? खुद को भी और अफरा को भी। ये सब सोचते ही उसे सारी रात गुजर गई थी। फजर की अजान की आवाज़ कानों में पड़ते ही अफरा अपनी सोचों से बाहर निकली और उठकर नमाज अदा की। नमाज अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेइख्तियार आंखों में आंसू आ गए।
یا اللہ میری محبت ایک طرفہ ہی صحیح مگر پاک ہے، آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ یا اللہ جہاں زیب کے دل سے بھابھی کی ایک طرفہ محبت نکال دے، بھابھی کو تو کچھ بھی علم نہیں ہے، جس دن انہیں پتہ چلے گا وہ بہت ہرٹ ہوں گی۔ یا اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنا، اس نکاح کے ساتھ مجھے ہمت دینا کہ میں جہاں زیب کے دل میں اپنے لیے محبت قائم کر سکوں۔ افرا دعا مانگتی اٹھ کھڑی ہوئی، پتہ نہیں کیوں مگر اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، اپنے نکاح سے نہیں جہاں زیب کی ایک طرفہ محبت سے۔ علیزہ کی آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی، اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے مقدم کی طرف دیکھا جو کسی تکیے کی طرح اسے خود میں بھیجے سو رہا تھا۔ علیزہ اسے دیکھتے مسکرائی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر نہیں، یہ ناممکن سا کام تھا۔ میر مجھے چھوڑے، مجھے نماز پڑھنی ہے، علیزہ اسے بازو سے ہلاتی ہوئی بولی۔ اٹھے میر، علیزہ نے پھر سے کوشش کی مگر بے سود۔ علیزہ کو ایک دم شرارت سوجی، اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور چہرہ مقدم کے چہرے کے قریب کیا اور اس کے گال پر دانت گاڑ دیے، جبکہ مقدم جو اسے تنگ کر رہا تھا اٹھ نہیں رہا تھا۔ علیزہ کی اس حرکت پر پٹ سے آنکھیں کھولتا علیزہ کو دیکھنے لگا جو اب معصوم سی شکل بنا کر مقدم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ اٹھ نہیں رہے تھے نا، اور مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، علیزہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ مقدم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اب چھوڑ بھی دے مجھے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، علیزہ مقدم کے گال پر نظر جماتے ہوئے بولی، جو اس کے کاٹنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا اور اس کے دانتوں کے نشان صاف بنے تھے۔ مسز مقدم میر احمد، کیا تم جانتی ہو جو تم نے ابھی ابھی مجھ پر تشدد کیا ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ مقدم علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے بتی سی نکالتے ہوئے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا سوچنے کا، علیزہ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولی۔ یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا میری جان، فی الحال ابھی نماز پڑھو، مقدم سے نرمی سے چھوڑتا ہوا بولا تو وہ فوراً بیڈ سے اٹھتی وضو کرنے چلی گئی۔ علیزہ اور مقدم نماز ادا کرنے کے بعد سب سے مل کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مقدم کا کہنا تھا کہ آج سب لوگ حویلی جا رہے ہیں نکاح کی تیاریاں کرنے، کیونکہ نکاح حویلی میں رکھا گیا ہے اور اس کی کچھ میٹنگز کی وجہ سے وہ گھر ہی رک رہا ہے اور علیزہ اس کے ساتھ ہوگی اور یہ لوگ حویلی پر سو جائیں گے۔ میں سارا دن اکیلی کیا کروں گی گھر پر، آپ مجھے یہاں ہی رہنے دیتے؟ علیزہ مقدم سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہ بیگم، میر تمہارے بغیر گزارا نہیں، تمہیں اپنے شوہر کا خیال ہونا چاہیے، مقدم بھی علیزہ کی ہی ٹون میں بولا۔ لیکن آپ تو آفس میں ہوں گے نا، میں کیا کروں گی؟ علیزہ نے وجہ پیش کی۔ میں میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آ جاؤں گا اور پھر ہم نے شاپنگ پر بھی جانا ہے، مقدم نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ تو آپ افراح کو روک لینا، ہم ساتھ لے جائیں گے، علیزہ مقدم کو التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں سب کی فکر ہے سوائے اپنے شوہر کے، اگر اب ایک لفظی فضول بولا نا، پھر نکاح والے دن لے کر جاؤں گا تمہیں حویلی۔ مقدم کا لہجہ اب سنجیدہ تھا، مطلب ایک وہ تھا جو سوچ رہا تھا کہ وہ علیزہ کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارے گا، اور ایک علیزہ تھی جو اس کے جذبات سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ کھڑوس، علیزہ نے برا سا منہ بنا کر مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ مقدم نے اسے بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو میں آپ کو کیوں کچھ کہوں گی، علیزہ مسکراتے ہوئے بولی، گویا صاف مکر گئی۔ گڈ، مقدم ہلکا سا مسکرایا اور پھر باقی کا راستہ خاموشی سے گزرا۔ مقدم علیزہ کو گھر چھوڑ کر آفس جا چکا تھا اور علیزہ اب افراح کے ساتھ بی جان کی پیکنگ کروا رہی تھی۔ بھابھی آپ بھی ہمارے ساتھ ہی آ جاتی، میں تو بہت بور ہو جاؤں گی ایسے، افراح علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں بھی بہت بور ہو جاؤں گی مگر کوئی بات نہیں، ایک دن کی ہی تو بات ہے، پرسوں میں آ جاؤں گی تمہارے پاس اور پھر ہم تمہارے نکاح کی ڈھولک رکھیں گے، ہے نا بی جان؟ علیزہ بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں بالکل، جو ہماری بہو کا دل چاہے گا وہی ہوگا، بی جان نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ دونوں بھی مسکرا دی۔ پھر سب علیزہ سے ملتے حویلی روانہ ہو گئے۔ مقدم اسے اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب آفس کا ڈور ناک ہوا۔ کم ان، مقدم مصروف انداز میں بولا تو ایس پی دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ مقدم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فائل بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی تو مسٹر مقدم میر احمد، آپ کا مجھے یہاں بلانے کی وجہ؟ ایس پی سیدھا ہو کر بیٹھتا مقدم سے مخاطب ہوا۔ ہاں وجہ تو بہت خاص ہے ایس پی، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ خاوہ جیل سے کیسے بھاگا؟ مقدم سنجیدگی سے ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا آپ نے نیوز میں نہیں دیکھا کہ اس کے کچھ ساتھی تھانے پر حملہ آور ہو کر لے گئے ہیں؟ ایس پی نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ ایس پی، میں نے سنا ہے تمہارا ایک بیٹا ہے جو اس وقت لندن میں پڑھائی کر رہا ہے۔ مقدم ٹیبل پر دونوں کونیاں رکھے دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملائے ایس پی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایس پی نے ماتھے پر چمکتے پسینے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔
मतलब یہ کہ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مقدم اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ ایس پی کھڑا ہوتا اونچی آواز میں بولا، آواز نیچی رکھو ایس پی، اور بھولو مت کہ کہاں کھڑے ہو تم، ابھی اور اسی وقت تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا میں، تمہیں اور تمہاری لاش ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی کسی کو۔ مقدم شیر کی مانند دہاڑتے ہوئے بولا، جبکہ ایس پی کی آنکھوں میں خوف سمانے لگا۔ اسی وقت داد اندر داخل ہوا اور اپنا فون آن کرتے ایس پی کے آگے کیا، جس میں اسی کا بیٹا کرسی پر رسیوں پر باندھا ہوا تھا اور سر ایک طرف لٹکا ہوا تھا اور وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ؟ ایس پی داد کی دھات سے فون پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، مگر اس کی جان لینے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ مقدم ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا چاہیے تمہیں؟ میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ایس پی اب اپنے مطلب پر آیا، خاور چاہیے مجھے، وہ کہاں چھپا ہے یہ صرف تم ہی جانتے ہو۔ مقدم دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، میں نہیں جانتا ہوں کہاں ہے، میں نہیں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، میں نے بس اسے جیل سے نکلنے میں مدد کی تھی، اس کے بعد وہ کہاں گیا یہ میں نہیں جانتا، خدا کے لیے اب میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ایس پی گڑ گڑاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، پھر جب تک خاور نہیں مل جاتا تب تک تمہارا بیٹا میرے پاس ہی رہے گا، اور خاور کہاں چھپا بیٹھا ہے اس کی بھی خبر تم مجھے دو گے۔ مقدم ایس پی کی طرف دیکھتا سخت لہجے میں بولا، نہیں میں نہیں جانتا، تم پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایس پی ایسے مسلسل گڑ گڑا رہا تھا، داد لے جاؤ اسے یہاں سے، اور جب تک یہ خاور کا پتہ نہیں بتاتا اسے میرے سامنے مت لانا۔ مقدم داد کو بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایس پی کی منت پکار کو نظر انداز کرتا آفس سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف شام کے سائے ڈھل رہے تھے اور موسم بھی بہت حسین ہو رہا تھا۔ علیزہ نے مغرب کی نماز ادا کی اور بالکنی میں چلی آئی، ٹھنڈی ہوائیں، خوبصورت موسم۔ علیزہ آنکھیں بند کیے موسم انجوائے کر رہی تھی، جب ایک سے بادل برسنے لگے۔ بارش بہت تیز تھی مگر بالکنی میں بارش نہیں آ سکتی تھی کیونکہ اس کے اوپر بھی چھت بنی ہوئی تھی۔ علیزہ تیز بارش کو دیکھتے بہت خوش ہوئی تھی اور کمرے سے نکلتی وہ چھت کی جانب بڑھ گئی۔ مقدم گھر میں داخل ہوا تو بارش بہت تیز تھی، وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا اندر کی جانب بڑھا، کمرے میں داخل ہوتے چاروں طرف نظر گھمائی مگر علیزہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ تو ماتھے پر ایک ساتھ کتنے بل نمودار ہوئے۔ وہ آتے ہی علیزہ کو دیکھنا چاہتا تھا مگر محترمہ پتہ نہیں کہاں غائب تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ روم میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ واش روم کا بھی دروازہ کھلا تھا۔ بالکنی میں دیکھا، وہاں بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ تو قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ مقدم نے کچن میں دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ باہر جگہ دیکھ چکا تھا مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ پریشان ہونے لگا تھا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے قدم چھت کی جانب بڑھائے۔ مقدم چھت پر آیا تو سامنے ہی علیزہ چھت کے بیچوں بیچ بازو کھولے کھڑی تھی۔ وہ مکمل بارش سے بھیگ چکی تھی، کپڑے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، دوپٹہ سر پر ہی موجود تھا اور مقدم کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ مقدم نے اسے دیکھتے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کے قریب جاتے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ مقدم کی اس حرکت سے علیزہ اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی، البتہ مقدم کی موجودگی وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ اس طرح بارش میں بھیگ رہی ہو، بیمار پڑ گئی تو؟ مقدم اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا، آپ کب آئے؟ علیزہ مقدم کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جو اس کے پیٹ پر بندھے تھے، میں تو کب سے آیا ہوں، تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، پریشان کر دیا تھا تم نے مجھے۔ مقدم اس کے سر سے دوپٹہ ہٹاتے اپنا چہرہ اس کے گیلے بالوں میں چھپاتا ہوا بولا، جبکہ تیز بارش کی وجہ سے وہ بھی مکمل بھیگ چکا تھا۔ اب بھلا چھت پر آنے کے لیے بھی میں آپ کو بتاتی، علیزہ منہ بناتے ہوئے بولی تو مقدم نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور کمر پر اپنے دونوں بازو باندھ دیے۔ تم نہ بتاؤ، میں تمہیں خود ہی ڈھونڈ لوں گا، جہاں بھی جاؤ گی مجھے اپنے بالکل قریب ہی پاؤ گی۔ مقدم اس کے چہرے سے بال ہٹاتا کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا، مجھے پتا ہے۔ علیزہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو مقدم مسکرا دیا، اچھا تو اس کا مطلب میری بیوی مجھے کافی سمجھنے لگی ہے۔ مقدم اس کی ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اسے دیکھتے مقدم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مقدم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، برستی بارش اس کے وجود کو مکمل بھگوئے ہوئے تھی، شفاف چہرے پر بارش کی بوندیں گرتی گردن تک جا رہی تھی اور اس کا بھیگا بھیگا وجود مقدم کو بہکا رہا تھا۔ نیچے چلیں، مجھے سردی لگ رہی ہے، علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مقدم ہوش کی دنیا میں لوٹا تو اس کی طرف دیکھنے لگا جو ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی۔ مقدم نے جھک کر اسے بازو میں اٹھا لیا۔ یہ آپ، علیزہ ابھی کچھ بولتی، مقدم نے اسے چپ کروا دیا۔ زیادہ مت بولا کرو،
इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मुकद्दम कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप मुझे बोलने कब देते हैं? फौरन तो अलीज़ा अभी बोल रही थी। मुकद्दम ने उससे एक झटके से छोड़ा, जबकि गिरने से पहले ही फिर से थाम लिया था। अलीज़ा ने डरकर जल्दी से उसके गले में दोनों बाजू डाल लिए और अब उसे घूर रही थी। आप मुझे गिराने लगे थे? अलीज़ा मुकद्दम को घूरते हुए बोली। नहीं, मैं तो देख रहा था कहीं मेरी बीवी के पर तो नहीं लगे जो खोलते ही वो उड़ जाएगी। मुकद्दम कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। नहीं, आप मुझे गिराने लगे थे जानबूझकर। अलीज़ा अभी भी मुकद्दम को घूर रही थी। बेबी, मुझे इन प्यारी आंखों से मोहब्बत से देखा करो, घूरा मत करो, वरना वरना क्या करेंगे आप? अलीज़ा और भी आंखें दिखाती हुई बोली। तो मुकद्दम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। बताओ मैं क्या भूल गई हूँ? अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? मुकद्दम उसे ड्रेसिंग रूम में लाता हुआ बोला। आप मुझे फिर से गिराएंगे? अलीज़ा ने मुकद्दम की तरफ देखते हुए पूछा। तो मुकद्दम ने हाँ में सर हिलाया। गिरा कर देखे? फिर अलीज़ा उसकी गर्दन में अपना हिसार तंग करती ही बोली। पहले ही अपनी बाजू हटाओ, फिर गिरा कर दिखाता हूँ। मुकद्दम उसे मसनूई घुरी से नवाजते हुए बोला। मैं तो नहीं हटा रही। अलीज़ा अपने बाजू और तंग करते हुए बोली। क्यों? मुकद्दम अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोला, तो अलीज़ा के इतने करीब आने पर बेकाबू होते जा रहे थे। अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली, बिकॉज यू आर माई पर्सनल प्रॉपर्टी, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। वो इतराते हुए बोली। तो मुकद्दम के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रेंग गई। आपको पता है, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अलीज़ा मुस्कुराते हुए बोली, जबकि मुकद्दम की नज़र में फिर से उसके होठों के पास पड़ने वाले डिंपल पर थी। वो बेइख्तियार झुका और उसके डिंपल पर लब रख दी। अलीज़ा का दिल इस जसारत पर जोर से धड़का था। और मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारी मुस्कुराती आंखें और ये डिंपल बहुत पसंद है। मुकद्दम उसे नीचे उतारता हुआ बोला। चेंज करके बाहर आओ जल्दी से, फिर खाना खाने चलते हैं। मुकद्दम प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोला और ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया। अलीज़ा चेंज करके बाहर निकली तो मुकद्दम रूम में नहीं था और वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। अलीज़ा अपना दुपट्टा सर पर लेती कमरे से बाहर निकल गई। उसका इरादा किचन में जाने का था। चूंकि मुलाजमा को भेज चुकी थी तो खाना उससे खुद ही लगाना था। मुकद्दम नहा कर निकला तो अलीज़ा कमरे में मौजूद नहीं थी। उसे माथे पर कई बल नमूदार हुए और अपनी शर्ट पहनता बाल पर ब्रश करता रूम से बाहर निकल आया। मुकद्दम ने किचन में कदम रखा तो सामने ही अलीज़ा खाना गर्म करने में मसरूफ़ थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता उसके करीब गया। इससे पहले कि मुकद्दम उसे पकड़ता, अलीज़ा की आवाज़ सुनाई दी। अगर आपने मुझे डराने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। अलीज़ा बगैर मुड़े ही बोली थी, जबकि मुकद्दम को खुशगवार हैरत हुई। अच्छा, मतलब मेरी बेगम को मेरी मौजूदगी महसूस हो जाती है? मुकद्दम वहीं पास कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। हाँ जी, अब हो जाती है। बगैर मुड़े ही जवाब दिया गया, जबकि मुकद्दम के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। अलीज़ा ने खाना गर्म किया और ट्रे में रखकर टेबल पर रखी और मुकद्दम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुकद्दम को खाना उसकी प्लेट में निकाल कर दिया और अपने लिए खाना डालने लगी, मगर मुकद्दम ने हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो और इसी में से खाओ मेरे साथ। मुकद्दम अलीज़ा की कुर्सी करीब घसीटते हुए बोला और प्लेट अपने और उसके दरमियान में की। तो अलीज़ा ने हैरत से मुकद्दम की तरफ देखा। लेकिन मामा ने तो बताया था आप किसी का भी झूठा नहीं खाते। अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, सही सुना तुमने, पर तुम किसी नहीं हो, मेरी ज़िंदगी मेरी रूह का हिस्सा हो। और मियाँ बीवी का एक साथ एक प्लेट में खाना झूठा नहीं होता, ये मोहब्बत होती है, इस रिश्ते की पाकीज़ा मोहब्बत। मुकद्दम उसके मुंह में पहलानी वाला डालते हुए बोला, जबकि अलीज़ा मुस्कुरा दी और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाने लगे। दूसरी तरफ बीजान इस वक्त अपने कमरे में बैठी जहांजेब के आने का इंतजार कर रही थी, जो अभी तक हवेली नहीं आया था और 2 दिन बाद निकाह था। उसने निकाह की शॉपिंग भी नहीं की थी और कोई खैर खबर भी नहीं थी कि वो इतने दिनों से कहाँ गायब है। अफरा मुसलसल जहांजेब के लिए परेशान थी। रह रहकर उसे बस एक ही बात की फिक्र सताई जा रही थी कि पता नहीं जहांजेब इस रिश्ते के लिए दिल से राजी है कि नहीं। वो उस पर मुसल्लत नहीं होना चाहती थी। वो चाहती थी कि जहांजेब उसे दिल से अपनाए, इसलिए वो उससे एक बार बात करना चाहती थी। वो हिम्मत करती उठी और कदम जहांजेब के कमरे की जानिब बढ़ा दिए, क्योंकि उसे अभी मालूम हुआ था कि जहांजेब वापस आ चुका है। अफरा ने दस्तक दी तो कोई जवाब न आया। उसने फिर से दस्तक दी, अब भी जवाब न आया तो दरवाज़ा खोलती कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ कोई भी नहीं था। अभी वो वापस मुड़ती, उसे अपने पीछे से जहांजेब की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? जहांजेब सर्द लहजे में बोला तो अफरा डर से एकदम पलटी।
सामने जहांजेब निखरा निखरा सा खड़ा था। गीले बाल माथे पर बिखरे थे जिनमें पानी की बूंदें टपक रही थी, जबकि वो सिंपल शर्ट और ट्राउजर में मलबूस था। सिंपल शर्ट में उसका कसरती जिस्म साफ नुमाया हो रहा था। अब बोलोगी भी कि मेरी शक्ल ही देखती रहोगी? जहांजेब उसे मुसलसल खुद को देखते हुए बोला। मैं अफरा से खौफ के मारे बोला ही नहीं जा रहा था। क्या वो? जहांजेब नहायत सख्त लहजे में बोला तो अफरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अफरा नज़रें झुका ज़मीन पर गाड़ती लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। बोलो। जहांजेब उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोला। खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ बोला मगर अफरा नहीं बैठी। क्या आ, आप इस निकाह के लिए दिल से राज़ी है? अफरा हिम्मत करती मजबूत लहजे में बोली। तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जहांज़ेब का लहजा अभी भी वैसा ही था। मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का मामला है, 2-4 दिन का खेल नहीं। अगर आप इस रिश्ते के लिए दिल से नहीं राज़ी तो आप बेशक इनकार कर दें। मैं ये बर्दाश्त कर लूँगी, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हूँ। अफरा नज़रें झुका कर बोली तो जहांज़ेब ने मुड़कर उसकी जानिब देखा और चलता हुआ उसके करीब कुछ फासले के करीब आकर रुक गया। तुम मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं की जा रही हो। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो अच्छे से। और मैं एक मर्द हूँ। मैं अगर ना चाहूँ तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि जहांज़ेब अहमद ख़ान का इनकार हाँ में बदल दे और मेरी ज़िंदगी में शामिल होने से पहले अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ समझ कर आना। अब तुम जा सकती हो और अब इस कमरे में दोबारा नज़र मत आना जब तक निकाह ना हो जाए। जहांज़ेब संजीदगी से कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अफरा कशमकश का शिकार होती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम बीजान। जहांज़ेब बीजान के कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। वालेकुम अस्सलाम। किधर थे तुम? बीजान उसे देखते हुए बोली जो उनके पास बैठ रहा था। बस ऑफिस का काम था बहुत सा। बीजान उधर ही बिजी था। जहांज़ेब बीजान के हाथ पर बोसा देता हुआ बोला। 2 दिन बाद निकाह है तुम्हारा, कुछ होश है तुम्हें? बीजान उसे देखते हुए बोली। जी जी बीजान, पर मुझे पता है। जहांज़ेब बीजान की तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोला। हम चाहते हैं कि तुम आज शॉपिंग पर जाओ और अपना और अफराह के निकाह का जोड़ा खुद पसंद करके लाओ। अभी बीजान आप जानती है कि मुझे ये सब नहीं पसंद। आपने निकाह का बोला था इसलिए मैं राज़ी हो गया। अब मुझसे ये मज़ीद चोचले नहीं होते। जहांज़ेब बीजान की तरफ देखते हुए उकताए हुए लहजे में बोला। हम तुमसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात गौर से सुनो। जहांज़ेब की तरफ देखते हुए बोली जो उनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुमने बहुत छोटी उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया था, जिनकी मोहब्बत की तुम्हें बहुत ज़रूरत थी। इस वक्त वो तुम्हारे साथ नहीं थे। हम चाहते हैं कि तुम अफरा से निकाह अपने दिलो जान से राज़ी होकर करो। हम चाहते हैं तुम उसे अपनी ज़िंदगी में एक मौका दो। वो तुम्हारी ज़िंदगी संवार देगी बेटा। अफरा बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी है। तुम अल्लाह के फ़ैसलों में राज़ी होना सीखो। बीजान, मैं अल्लाह के फ़ैसलों में राज़ी होकर ही ये निकाह कर रहा हूँ। मैं अफरा को एक मौका ज़रूर दूंगा, मगर मेरे लिए अपनी मोहब्बत को भुलाना नामुमकिन है। जहांज़ेब उठकर बैठता हुआ बोला। जहांज़ेब, अगर अलीज़ा को इस बारे में पता चला तो उस बच्ची का दिल टूट जाएगा। वो बहुत नाजुक दिल है। तुम अपनी मोहब्बत की आड़ में अफरा और अलीज़ा दोनों को नुकसान पहुंचाओगे। बीजान उसे नरमी से समझाती हुई बोली। बीजान, मैंने कब उसका साथ मांगा है? मैंने कब उसकी चाह की है? बस मेरे दिल में जो उसका मकाम है वो एहतराम का है और मैं ये मकाम कभी ख़राब होने नहीं दूंगा। जहांज़ेब बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। जो भी माजी में हुआ उससे मुझे नफ़रत है, मगर मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं कि अपने रिश्तों को ना पहचान पाऊँ। मैं इस सब के लिए मुकद्दम को माफ़ नहीं कर सकता, मगर उसका और मेरा रिश्ता क्या है मैं ये भी नहीं भूल सकता। जहान से बोलता एक आखिरी नज़र बीजान को देखते कमरे से निकल गया, जबकि बीजान माजी में हुई अपने बच्चों की एक गलती याद करने लगी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। माजी। जहांज़ेब और मुकद्दम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी गहरी दोस्ती की मिसाल पूरा कॉलेज देता था। मुकद्दम, यार बाहर निकल, क्यों दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा? जहांज़ेब अपने वॉशरूम में घुसे मुकद्दम से मुखातिब हुआ, जो 2 घंटे से अपना कमरा छोड़कर उसके वॉशरूम में घुसा हुआ था और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि जहांज़ेब को उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। देख मुकद्दम, अगर तू बाहर नहीं निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहांज़ेब वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ा चिल्लाता हुआ बोला, जबकि मुकद्दम उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होता बहरा बने खड़ा था। ठीक है, मत निकल बाहर। मैं जा रहा हूँ तेरे कमरे में और अपने हाथों से तेरी बनाई
असाइनमेंट फाड़ दूंगा। जहांज़ेब उसे धमकाता हुआ बोला तो अगले ही पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आखिर अब मैं सुकून से नहा भी नहीं सकता, मुकद्दम से घूरते हुए बोला। मेरे भाई तू सुकून से नहा, पर अपने कमरे में मेरे कमरे में क्या लेने आया है? जहांज़ेब भी उसे घूरते हुए बोला। मेरे वॉशरूम का नल जाम हो गया है, और वैसे भी ये तेरा कम और मेरा कमरा ज़्यादा है। मुकद्दम बोलता हुआ अपने बाल ब्रश करने लगा। नल नहीं, तेरा दिमाग जाम हो गया है, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दूंगा। सब्र करो बेटा, फिलहाल मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि मैं तुझसे बहस करने में ज़ाय कर दूं। जहांज़ेब मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोला और वॉशरूम में घुस गया। जहांज़ेब और मुकद्दम उस वक्त कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे। उनके पास एक लड़की आई। वो लड़की उनकी ही क्लास में पढ़ती थी। जब से मुकद्दम और जहांज़ेब का इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तब से ही वो की लड़की मुकद्दम के पीछे थी। वो बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश करती थी, मगर मुकद्दम उसकी तरफ देखता तक नहीं था। वो लड़की चलती हुई उन दोनों के पास आई और मुकद्दम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? वो लोग शौक लहजे में वो शौक लहजे में कहती हुई उनकी तरफ देखते हुए बोली, जबकि उसका इतना बोल्ड रवैया ये दोनों को ही नागवार गुजरता था। उन दोनों में से किसी ने भी उस लड़की को जवाब देने की गलती नहीं की थी। अपने नज़रअंदाज होने पर वो गुस्से से पागल होती वहां से उठकर चली गई, जबकि मुकद्दम और जहांज़ेब ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जैसे उनको उससे कोई भी फर्क ना पड़ा हो। तानिया गुस्से में सुलगती हुई कॉलेज से निकल गई थी, जबकि उसका दोस्त हैदर उसके पीछे पीछे था। तानिया यार, क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ, वो उसके साथ कदम बढ़ाता हुआ बोल रहा था, जबकि तानिया उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो उसके आगे खड़े होते हुए बोला। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नज़रअंदाज करने की? क्या वो जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं तानिया मुराद हूँ, जिससे पूरे कॉलेज के लड़के दोस्ती करने को तरसते हैं, और वो लड़का मुझे नज़रअंदाज करता है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो बेहद गुस्से के आलम में बोल रही थी, जबकि उसके पास खड़ा हैदर सिर्फ उसे देख रहा था। मैं उसे बदला लेकर ही छोड़ूंगी। बहुत गुरूर है ना इन दोनों को एक दूसरे की दोस्ती का। अब उन दोनों को अलग ना किया तो मेरा नाम भी तानिया मुराद नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम मत छोड़ना उन्हें, तुम अपना बदला ले लो, मगर ऐसे नहीं। पहले मेरी बात सुन लो, मेरे पास एक आइडिया है। हैदर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। कैसा आइडिया? तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली। ऐसे नहीं बता सकता, पहले यहाँ से चलो, कहीं और जाकर बताता हूँ। वो तानिया का हाथ पकड़कर गाड़ी में ले जाते हुए बोला, और अब उनका रुख रेस्टोरेंट की जानिब था। मुकद्दम इस वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा अपनी असाइनमेंट तैयार कर रहा था, जब तानिया उसके पास आकर बैठ गई। हेलो, कैसे हो तुम? तानिया मुकद्दम के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, तो मुकद्दम ने एक नज़र उसे देखा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों नहीं मुझसे बात करते? क्यों नहीं मेरी बातों का जवाब देते? तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो मुकद्दम ने अपनी किताब बंद की और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। देखिए मिस, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप बार बार मुझसे मुखातिब होकर अपनी इंसल्ट खुद ही करवाती है, और मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बार बार मेरे सामने आकर मुझे गुस्सा मत दिलाया करें, और मेहरबानी यहाँ से चली जाए, मुझे मेरा काम करने दें। मैं कॉलेज पढ़ने आता हूँ, फालतू की दोस्तियाँ निभाने नहीं। मुकद्दम के लहजे में उकताहट थी। तानिया सुलगती हुई वहाँ से उठी और लाइब्रेरी से चली गई। तो मैं बताऊंगी मुकद्दम मीर अहमद कि तुमने मुझे नज़रअंदाज करके इतनी बड़ी गलती कर दी है। वो मकारी से मुस्कुराती हुई कोई जहांज़ेब की तरफ कदम कदम बढ़ाते हुए बोली। हेलो मिस्टर जहांज़ेब, कैसे हैं आप? तानिया जहांज़ेब की तरफ देखते हुए बोली, जबकि जहांज़ेब को उसका मुखातिब करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं ठीक हूँ, वो सिर्फ दो तीन हुर्फ में जवाब देता अपनी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया। देखिए मिस्टर जहांज़ेब, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तानिया जहांज़ेब की तरफ देखते हुए बोली। कैसी हेल्प? जहांज़ेब उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगा। दरअसल मेरी एक दोस्त है जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और वो इसी कॉलेज में साथ ही पढ़ती है, मगर कुछ दिनों से उसे एक लड़का बहुत तंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो अब कॉलेज नहीं आ रही, और उस लड़के ने उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया है, और बोला है कि अगर वो मिलने ना आई तो वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, और उस कॉलेज में पढ़ना और रहना मुहाल कर देगा। मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा डर गई है। वो लड़का हमारे ही कॉलेज का है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें। जिस दिन वो लड़का मेरी दोस्त को मिलने आए, उस दिन आप मेरे साथ चलें और मेरी दोस्त को उस लड़के से बचाने में मेरी मदद करें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
चाहती तो किसी और को भी ये बात बता सकती थी, मगर इस सब के लिए मुझे आप ही सही लगे। प्लीज़ मेरी मदद कर दे, ये मेरी दोस्त की ज़िंदगी का सवाल है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तानिया जहांज़ेब की तरफ देखती नम लहजे में बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ आपकी मदद करने के लिए, मगर वो लड़का कब मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है, मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। जहांज़ेब तानिया की तरफ देखते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और वो लड़का कब मिल रहा है ये बात मैं आपको कल ही बता दूंगी, तानिया मुस्कुराते हुए बोली और उठकर वापसी की तरफ चली गई, जबकि चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट थी। मुकज़िम इस वक्त अपने कमरे में बैठा पढ़ने में मसरूफ़ था, जब उसके फ़ोन पर एक अननोन से कॉल आई। मुकज़िम ने कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया। हेलो, 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 मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। खुदा के लिए मुझे यहाँ से बचा लो आकर। ये दरिंदा मुझे मार देगा, मेरी इज्जत खाक हो जाएगी। फ़ोन में से किसी की रोती गिड़गिड़ाती ही लड़की की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, आप कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है? प्लीज़ मुझे बचाए मुकज़िम, प्लीज़ मुझे बताएं। मुकज़िम भी मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया होने वाला था, होते हुए बोला, मैं आपकी क्लासमेट अलीशा हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लें। मैं इस वक्त कॉलेज के पीछे बनी बिल्डिंग में मौजूद हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। वो लड़की मुसलसल रो रही थी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो, मैं बस आ रहा हूँ। मुकज़िम बोलता हुआ फ़ोन बंद करता उठकर बाहर की तरफ बढ़ा। जहांज़ीब इस वक्त अपने कमरे में मौजूद बेड पर नींदराज था। जब उसका फ़ोन बजा, उसे देखा तो किसी अनजान नंबर से कॉल थी। उसने फ़ोन कान से लगाया। हेलो जहांज़ेब, हेलो जहांज़ेब, मैं तानिया बात कर रही हूँ। इस वक्त मैं कॉलेज के पीछे वाली बिल्डिंग में मौजूद हूँ। वो लड़का मेरी दोस्त के साथ वहीं पर मौजूद है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ तुम जल्दी पहुँचो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तानिया बोलते ही फ़ोन काट गई थी, जबकि जहांज़ेब तेज़ी से उठा और भागता हुआ अपनी बाइक तक पहुँचा। मुकज़िम उस बिल्डिंग में पहुँचा तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने आगे होकर एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई। आप ठीक है? मुकद्दम उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला। तो वो लड़की एकदम से उठ खड़ी हुई, कोई और अपने कपड़े खुद ही फाड़ने लगी। ये आप क्या कर रही है? आपने तो मुझे मदद के लिए बुलाया था ना? मुकद्दम उसकी जानिब देखते हुए बोला, जो अपने कपड़े बुरी तरह से फाड़ने में लगी हुई थी। हाँ, मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था, मगर अफ़सोस अब तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। वो लड़की ये बोलते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। क्या तुम पागल हो गई हो बेवकूफ़ लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? उस लड़की पर वो उस लड़की पर चिल्लाता हुआ बोला, जबकि वो लड़की अपने हाथ में एक चाकू को पकड़कर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो अभी उस पर वार करती मुकद्दम ने पहले ही उसके चाकू वाले हाथ को पकड़ लिया और उसे एक धक्का दिया, जिससे वो बेड पर जा गिरी। मुकद्दम उसे देखता वापस मुड़ा, मगर सामने जहांज़ेब को देखकर कदम वहीं रुक गए। तुम घटिया वहशी इंसान, ये तुमने क्या किया है इस लड़की के साथ? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम इस कदर घटिया हो सकते हो, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा सोचा था। जहांज़ेब उसका गिरबान पकड़ते हुए चिल्लाकर बोला, जहांज़ेब यार मेरी बात सुन, जो तू समझ रहा है वो गलत है। मुकद्दम उससे अपना गिरबान छुड़वाता हुआ बोला, मैं जो समझ रहा हूँ वो गलत है, जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है कि वो झूठ है। क्या वो झूठ है? उस लड़की की हालत देखो, इस सब के जिम्मेदार तुम हो। तुमने जो कुछ भी किया है ये अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को खाक कर दिया है। जहांज़ेब उसके चेहरे पर घूंसों की बरसात करते हुए बोला तो मुकद्दम ने उसके मुंह से ये सब सुनकर गुस्से से पागल होते जवाबी कार्रवाई में उसे भी मारना शुरू कर दिया था। एक दूसरे को मारते हुए वो दोनों लहूलुहान हो गए थे, जब कॉलेज की इंतज़ामिया वहाँ पर पहुँचे और इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया। हालिम साहब इस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे, जबकि उनके सामने जहांज़ेब और मुकद्दम खड़े थे। देखिए प्रिंसिपल साहब, मैं इन वालिदैन में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों की गलतियाँ छुपाते हैं। मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में हज़ार गलतियाँ कर सकता है, मगर वो किसी लड़की की इज़्ज़त पर हाथ नहीं डाल सकता। इस बात पर यकीन नहीं रखता मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात को हर तरफ फैलाने से बेहतर है कि आप अपने कॉलेज इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस बात की तह तक जाएं। हालिम साहब प्रिंसिपल को देखते हुए संजीदगी से बोले, देखिए मिस्टर हालिम साहब, हमने वो सब अपनी आंखों से देखा है, हम उसे झुठला नहीं सकते। प्रिंसिपल हालिम साहब की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मेरी तरफ से कल एक पुलिस टीम आपके कॉलेज आएगी और सारी छानबीन अब पुलिस ही करेगी। मेरी एक बात याद रखिएगा, सच सामने आने के बाद आपके कॉलेज की रेपुटेशन का क्या होगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे।
حالم صاحب بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقدم اور جہان زیب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد سارا سچ CCTV فوٹیج کے ذریعے سب کے سامنے آ چکا تھا۔ اس تانیہ اور علیشا کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کو کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ واقعے کے بعد جہان زیب بہت شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے مقدم سے بہت بار معافی مانگنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ نہ تو اس کی طرف دیکھتا تھا۔ مقدم پڑھنے کے لیے لندن چلا گیا، جہان زیب کو بتائے بغیر، اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد اور جہان زیب معافی مانگ کر مقدم کی بے رخی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ جہان زیب سے پوچھے بغیر اور اس کے اور بار بار نظر انداز کرنے کی وجہ سے جہان زیب بھی پتھر بن گیا تھا، تھک چکا تھا۔ آخرکار مقدم کی بے رخی، گھر والوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان دونوں کے بعد وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ درمیان میں پہلے جیسے تعلقات نہیں بن پائے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے غافل ہو چکے تھے۔ ان کی ہمیشہ ساتھ رہنے والی عادت، ان کی مثال دیتی دوستی ایک سازش کے آڑے آ چکی تھی۔ اب آگے۔ مقدم اپنے لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھا مقدم اور علیزہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ اس نے ایک نظر مقدم کو دیکھا جو اپنا کام کرنے میں مصروف تھا، اور جبکہ علیزہ اب بور ہونے لگی تھی۔ اس پر پاس ورڈ لگا دیکھ پھر ایک نظر مقدم کے موبائل کو دیکھا جو بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ علیزہ نے ہاتھ بڑھا کر فون پکڑ لیا، مگر 1000 کوششوں کے بعد ہی پاس ورڈ نہیں کھلا تھا کہ علیزہ نے منہ بسورا اور پاس ورڈ کھولنے کی کوشش کرنے لگی اور فون اس کی طرف بڑھایا تو مقدم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ علیزہ اٹھی اور مقدم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اسے کھول دے، علیزہ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اتنا اچھا تو فون ہے، کھول کر کیا نہلانا ہے تم نے؟ مقدم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ علیزہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جیسے مقدم کی اوفو، میر فون کھولنے کا نہیں، پاس ورڈ کھولنے کا کہہ رہی ہوں۔ اس کی اس حرکت پر مقدم مسکرایا۔ عقل پر ماتم کر رہی ہو؟ خود کھول لو، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مقدم بولتا ہوا دوبارہ نظریں لیپ ٹاپ پر جما گیا۔ علیزہ مقدم کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھتی ہوئی بولی، میں نے کوشش کی ہے نا، یہ نہیں کھل رہا، آپ کھول دیں۔ اس پاس ورڈ کو گیس کرو اور میری زندگی کے سب سے اہم اور میری سانسوں میں بسنے والے انسان کا نام ہے، کھول لو۔ مقدم ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ فوراً پاس ورڈ کھل گیا، جبکہ علیزہ کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کبھی کسی کا نام لکھتی تھی، کبھی کسی کا، پھر اس نے اپنا نام لکھا تو کھل گیا۔ یہ آپ نے میرا نام؟ علیزہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو مقدم اپنا لیپ ٹاپ پیچھے کرتا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ مقدم اسے آہستہ سے اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا، یہ فقط تمہارا نام نہیں ہے، اس نام سے میری زندگی، میری سانسیں منسلک ہے۔ یہ شخص اتنا کمال کا دل رکھتا تھا، جس نے محبت کے اظہار میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ یہ دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اس کی سانسیں بھی علیزہ کی غلام ہیں۔ وہ دوسروں کی طرح وعدے نہیں کیا کرتا۔ اس نے دوسروں کی طرح وعدے نہیں کیے تھے۔ علیزہ مسکرا دی تھی اور مقدم ذرا فاصلے پر بیٹھ کر فون یوز کرنے لگی۔ سب سوچتے ہوئے مگر اس کے فون میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ علیزہ مقدم کے فون میں ہر چیز دیکھ چکی تھی، اس لیے کوئی مووی لگا کر بیٹھ گئی جو وہ اسے دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ بغور دیکھے اس نے وہ مووی لگا دی اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ مووی ڈراؤنی ہے۔ جیسے اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے اب جیسے مووی چل رہی تھی۔ علیزہ چیخی اور علیزہ کے خوف کے مارے آنکھیں کھل گئی۔ وہ ایک دم پھر اس مووی میں سے ایک دم ایسا سین آیا کہ فون اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا اور فوراً اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مقدم ایک دم سے پریشان ہوتا ہوا اٹھا۔ مقدم نے نیچے جھک کر اپنا فون اٹھایا، جس میں ایک عجیب و غریب شکل کا آدمی ایک لڑکی کی گردن کاٹ رہا تھا اور اس میں خون میں لت پت لڑکی پڑی تھی۔ علیزہ نے اپنی آنکھیں خوف کے مارے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، سختی سے میچی ہوئی تھی اور مقدم کے بازو کو اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔
ادھر دیکھو میری طرف، مقدم نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوا، اور کس نے کہا تھا یہ مووی لگانے کو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مووی ایسی ہے، اس نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ تم ویڈیو والے کام کر لیتی نا، مووی لگانے کو کس نے کہا تھا؟ کون سے؟ علیزہ نے سوالیہ نظر سے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تمہارا شوہر کس کس سے بات کرتا ہے، کیسے کیسے بات کرتا ہے۔ مقدم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ میرا شوہر ایسا نہیں ہے، علیزہ اتراتے ہوئے بولی۔ تو مقدم نے وضاحت چاہی کہ آپ کا شوہر پھر کیسا ہے؟ بس مجھے پتا ہے۔ علیزہ اب کی بار اٹھنے لگی تو اس نے اس کی کوشش کو روک دیا۔ چھوڑے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ علیزہ مقدم کا حصار پھر توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت غلط بات ہے بیگم، پہلے تم خود میرے قریب آ کر میرے جذبات جگاتی ہو اور پھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے ہوئے بولا جو مسلسل چل رہے تھے۔ علیزہ مقدم کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں جگاتی، میں تو خود بہت مشکل سے جاگتی ہوں۔ جبکہ اس کی بات اور مقدم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، آج کے بعد میں جگا دیا کروں گا، پھر تمہیں جاگنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مقدم اسے بازو میں اٹھاتا ہوا بولا، میں آپ کو اتنی ہلکی لگتی ہوں کیا جو آپ مجھے بار بار اٹھا لیتے ہیں؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں بس چیک کرتا ہوں کہ جتنا تم میرا دماغ کھاتی ہو اس سے تمہارا وزن بڑھا یا نہیں۔ مقدم نے نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا تو علیزہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ میں آپ کا دماغ کھاتی ہوں؟ علیزہ صدمے کی کیفیت میں بولی تو مقدم نے ہاں میں سر ہلایا۔ میری تو آپ سے بات بھی نہیں ہوتی اور آپ بول رہے ہیں کہ میں آپ کا دماغ کھاتی ہوں؟ کب کھایا میں نے آپ کا دماغ، بتائیں مجھے۔ علیزہ ابھی کچھ اور بولتی کہ مقدم اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر باقی ساری باتوں کا گلا گھونٹ چکا تھا اور وہ اس پر حاوی ہوتا چلا گیا اور علیزہ پھڑپڑاتی رہ گئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کوشش میں ہلکان ہوتی رہی جب مقدم نے اس کے ہاتھ اس کے پیچھے کر چکا تھا، جبکہ علیزہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیے مقدم بالکل مدہوشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر اپنے ہونٹ نرمی سے اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے جدا کیے، جو لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی نڈھال ہو رہی تھی۔ مسز مقدم میر احمد، مقدم کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت تم نے کی۔ تم میرے لیے کیا ہو تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی۔ اس نے اپنا سرخ چہرہ مقدم کے سینے میں چھپا لیا تو مقدم کا قہقہا پورے گھر میں گونجا۔ پھر مقدم نے لائٹ آف کی اور اسے اپنے حصار میں لیے سمیٹ کر وہ سو گیا اور آنکھیں موند لی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اپنا بھی خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔